We are done with fission and budding now, what I believe. So Yes, ma'am. today we are going to continue with, alright. So class 8th, today we are going to start with the topic of asexual reproduction. As you know that we have discussed a part of it in earlier classes. Today I'm just going to give you a glimpse of, once again, glimpse of a binary fission. As you know that asexual reproduction is a type of reproduction which involves only one parent. It is a uniparental type of asexual reproduction in which the parent loses its identity and parent itself gets divided into daughter cells, right? So it is a kind of reproduction in which the organism, the parent organism, does not remain while it gets divided into the daughter cells, right? So it is one of the most common method of asexual reproduction which is found in bacteria. It is found in protozoans such as amoeba, paramecium, etc. However, in case of any kind of unfavorable environment, that means to say, when the conditions are not congenial, they are hostile, let's say that environment is not friendly, let's say that temperature is more, let us say that availability of nutrients is less, then what kind of changes does happen in this binary fission? What happens then? Kosha? Multiple fission. Multiple fission. Shreya, multiple fission में what special structure does they form? Ma'am, they form a protective coat. A protective layer called? Cyst. Cyst. So this cyst is formed in case of multiple fission when the environment is unfavorable, right? So let's come on to this budding part once again. Budding, it is a kind of asexual reproduction once again, but in this, what is the difference between budding and binary fission? Skand Gupta. Yes, ma'am. Differentiate between budding and binary fission. मैम budding में मैम birds form करते हैं मैम parent. मैम binary fission में मैम खुद divide हो जाते हैं. ठीक है. और budding में जो parent है उसकी identity maintain रहती है. binary fission में parent भी divide हो जाता है. ठीक है. budding में हम ये नहीं कह सकते कि parent immortal है, जबकि इन केस ऑफ बाइनरी फिजन क्योंकि पेरेंट ही डिवाइड हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो पेरेंट है या सेल है वो इमॉर्टल. क्लियर है? यस मैम. आई बिलीव दैट हम लोग जस्ट एक आउटग्रोथ होता है. आई बिलीव दैट हम लोग बात कर रहे थे स्पोर फॉर्मेशन की लास्ट टाइम, है ना? इज दैट सो अर्ना? यस मैम. यस. तो यस. हाँ, तो स्पोर फॉर्मेशन जो है ज्यादातर फंजाई, किंगडम माइकोटा के ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं. वो कुछ स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिन्हें स्पोर्स कहते हैं. इनमें से जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं जू स्पोर्स. कोनिडिया मोटाइल नहीं होते. ठीक है. तो इस तरह से कई तरीके के एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं फंजाई. और ये स्पोर्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं राइजोपस, ब्रेड मोल्ड देख रहे हैं. ठीक है. तो ये जो ब्रेड मोल्ड है एक स्टेल ब्रेड के ऊपर ग्रो करा हुआ है और उसमें इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बन रहे हैं. जब ये स्पोरेंजियम में स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो वो बर्स्ट करके बाहर रिलीज कर रहे हैं, राइट? तो हमने अभी तक जो मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े वो मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या बता रहे हैं हमें? वो बता रहे हैं हमें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अलग अलग तरह का होता है. अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक और मोड पे आ रहे हैं जिसे हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन. आई बिलीव दैट दिस इज व्हाट we all should understand one very important thing कि अलग अलग तरीके के यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके के एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होते हैं. जैसे फ्रैगमेंटेशन ज्यादातर ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनका बॉडी जो होता है स्ट्रक्चर वो सिंपल होता है, मल्टीसेलुलर होते हुए भी सिंपल होता है. ऐसे ऑर्गेनिजम्स में फ्रैगमेंटेशन होता है. फ्रैगमेंटेशन मतलब फ्रैगमेंट्स, टुकड़े. तो जैसे हम यहाँ पर एक एल्गी ले लेते हैं, स्पाइरोगाइरा. स्पाइरोगाइरा एक एल्गी है जो लंबे लंबे फिलामेंटस फॉर्म्स में अवेलेबल है. तो जब इसके फिलामेंट्स ज्यादा लंबे हो जाते हैं तो वो फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं और हर फ्रैगमेंट एक नया स्पाइरोगाइरा जनरेट करता है. तो इसको कहते हैं हम
फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है ये? Yes, ma'am. है ना? Excuse तो me, मतलब ma'am. फ्रेगमेंटेशन एक इस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे स्टारफिशेस में होता है, जैसे सी एनिमोन में होता है, जैसे कि एल्गी में भी होता है। एक और मेथड है जो बहुत कॉमन नहीं है। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रीजनरेशन पाया जाता है। देखो रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में क्या अंतर है? रीजनरेशन जो है वो ज्यादातर सभी ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं, पर रीजनरेशन वो किसका शो करते हैं? रीजनरेशन ज्यादातर वो डैमेज पार्ट का शो करते हैं, किसी लॉस्ट बॉडी पार्ट का शो करते हैं। तो जैसे एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए हम एक लिजर्ड की बात करें, तो एक लिजर्ड जो है इट इज अ रेप्टाइल और ये एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अभी जब लिजर्ड जो है, मान लीजिए किसी दरवाजे में आके इसका टेल कट गए, तो जब इसका टेल कट जाता है तो वो टेल वाला पार्ट ये फिर से रीजनरेट कर देगी। तो ये डैमेज्ड पार्ट को रीजनरेट करने का तरीका है, राइट? तो इस कट टेल से नया टेल बन के आ जाएगा। लेकिन अगर लिजर्ड दो टुकड़ों में बट गई उसकी टेल की जगह, तो उसकी पूरी बॉडी में रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं है। यानी ऐसा नहीं होगा कि लिजर्ड के दो टुकड़ों से दो नई लिजर्ड्स बन जाए। मेरी बात थोड़ी समझ आई क्या? Yes, ma'am. Yes. है ना? तो ऐसा है कि रीजनरेशन पाई तो सब ऑर्गेनिज्म में जाती है, लेकिन पार्शियल रीजनरेशन, जैसे हमारे बॉडी में लिवर है। लिवर सब लोग पता है, लिवर सुना है बच्चों? Yes, Yes, ma'am. ma'am. लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, राइट? तो ये जो सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी बहुत होता है, तो इसके पास है पावर ऑफ रीजनरेशन। अगर आपने कभी सुना हो लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में, तो लीवर ट्रांसप्लांट एक जिंदा व्यक्ति भी कर सकता है ना? अगर मान लीजिए मैं किसी को अपना लिवर देना चाहती हूँ, तो अगर कंपैटिबिलिटी है मेरी और उसकी बॉडी में, तो डॉक्टर्स मेरे लिवर का एक छोटा फ्रैक्शन लेकर उसके बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे, जिससे कि मेरा जो निकला हुआ पोर्शन है फिर से रीजनरेट हो जाएगा और उसकी बॉडी में जाकर वो जो छोटा सा लिवर का पोर्शन है वो पूरा लिवर बना देगा। तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जिसके पास कैपेसिटी है रीजनरेशन। हमारे स्किन के सेल्स, इनके पास कैपेसिटी है रीजनरेशन, राइट? Excuse me, तो ma'am. हाँ बेटा बोलो। मैम अगर मैम लिजर्ड की टेल के साथ साथ उसकी थोड़ी सी बॉडी भी कट जाए तो? किसकी? लिजर्ड की। बेटा अगर बॉडी कट जाए तो उसकी पूरी बॉडी रीजनरेट नहीं कर पाएगी। देखो इसको समझने के लिए आपको एक बड़ी जरूरी बात समझनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान देके सुनिएगा। मैंने यहाँ पर जब आपको बताया कि भाई रीजनरेशन होता है कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो देखो ये बात समझने की जरूरत है कि एक सिंपल मल्टीसेलुलर और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर में किस चीज का अंतर है। मैं, आप, ये लिजर्ड, फिश, हम सब कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि जो हमारे सेल्स हैं उनमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हायर लेवल का है, सही है? हायर लेवल का क्या मतलब है? मतलब डिवीजन ऑफ लेबर है जबरदस्त, राइट? इसका मतलब ये है कि जैसे मेरी बॉडी है उसमें लिवर कुछ काम करता है, स्टमक कुछ और काम करता है ना, इंटेस्टाइन कुछ और काम करती है, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है ma'am. बात सही? Yes, ma'am. तो अगर मेरी बॉडी को आप काटेंगे, तो मेरा लिवर वाला काम तो लिवर ही करता है ना, हाँ या ना? Yes, ma'am. है ना? Yes, तो ma'am. हमारी बॉडी में हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो मेरा एक ऑर्गन सिस्टम जिसमें अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उनको हमने काम बांट दिया, भाई तू लिवर है तो ये काम कर, स्टमक है तो ये काम कर, ऐसे करके हमने काम अपने बांट दिए। तो अगर मेरा स्टमक आप काट दोगे, तो और किसी के पास कैपेसिटी नहीं है स्टमक की तरह काम करने की, है ना? क्योंकि हमने ऑलरेडी डिविजन ऑफ लेबर कर रखा है। बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज ऑफ दिस हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पार्ट दूसरे पार्ट का काम करने में सक्षम नहीं है, केपेबल नहीं है। और ये वजह हमारे बेस्ट ऑर्गेनिज्म होने की भी एक वजह है ये, और रीजनरेट ना करने की भी एक वजह है। बात समझ आई क्या या नहीं आई? Clear, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear, ma'am. मतलब ये बात है कि एक लेवल पर जाके हम इतने कॉम्प्लेक्स और मल्टीसेलुलर हो गए हैं कि मेरी आंखें हैं वो देखने का काम तो बहुत अच्छा करेंगी,
लेकिन मेरी आंखों को फिर कोई और काम नहीं आता, है ना। तो अच्छा काम तो कोई तभी कर सकता है जब वही काम करे, उसी काम में स्पेशलाइज करे। लेकिन ऐसा करते हुए क्या होगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए एक कॉलेज में प्रोफेसर है बॉटनी के, वो क्या पढ़ाएंगे अभी ना, एक बॉटनी के प्रोफेसर क्या पढ़ाते हैं, बायोलॉजी, मतलब बॉटनी में क्या पढ़ा है, प्लांट्स के बारे में पढ़ाते हैं, प्लांट। ठीक है अभी ना, प्लांट्स के बारे में पढ़ाते हैं। अब वो बॉटनी के जो प्रोफेसर हैं, उनसे कोई कहे कि सर आप क्लास 8th में आके फिजिक्स का लाइट चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो उनको दिक्कत होगी या नहीं? yes ma'am, यस होगी मैम। ना दिक्कत उनको, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, ही इज अ मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, बट व्हेन इट कम्स टू अदर सब्जेक्ट्स then he is not so sure because he is focusing mainly on botany. Now you are saying him like go and teach physics, go and teach mathematics, that will be very difficult for him, though he is a professor, right, though he is a master of his subject, but he is a master of his subject, he is not able to do other subjects. Are we clear? Yes, ma'am. यस मैम। जबकि आपकी मिडिल स्कूल की कोई और आम टीचर जनरली जो 6th 7th 8th में पढ़ाती हैं साइंस, वो पढ़ा देंगी ना वो, है ना, यस मैम। क्योंकि वो हाँ। स्पेशलाइज नहीं है। तो स्पेशलाइज होने का फायदा भी है हमें, स्पेशलाइज होने का नुकसान भी है। ठीक समझ में आ गई बात? Yes, ma'am. yes ma'am, ऑलराइट, सो लेट्स प्रोसीड विद। अब ऐसा है बच्चों, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे को आपसे पूछनी है। अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर एक आपको मैं डायग्राम दिखा रही हूँ प्लेनेरिया का, बहुत ही मजेदार डायग्राम है ये, एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम है, क्लास 10 में बहुत काम आएगा, इसको ध्यान से देखो। ये क्या करा हमने, इसको प्लेनेरिया को, प्लेनेरिया जो है ये एक प्लैटीहेलमिन्थिस है, ये एनिमल किंगडम के फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस से बिलोंग करता है, ठीक है। तो प्लैटीहेलमिन्थिस से बिलोंग करने वाला ये ऑर्गेनिज्म जो है, इसको हमने क्या करा, देखो इसको हमने क्या करा, ये ऑर्गेनिज्म है, दिस इज द ऑर्गेनिज्म जिसकी हमने काट पीट मचाई है। हमने क्या करा, इस प्लेनेरिया के 3 टुकड़े कर दिए, सर वाला हिस्सा 1 कहलाया, बीच का धड़ वाला हिस्सा 2 कहलाया और टेल वाला हिस्सा 3 कहलाया। अब ये जो 1 वाला हिस्सा है, हेड वाला, ये हेड वाले हिस्से से पूरा का पूरा प्लेनेरिया बन गया, टेल वाले हिस्से से भी पूरा प्लेनेरिया बन गया, और बीच के हिस्से से, धड़ वाले हिस्से से, सेकेंड हिस्से से भी पूरा प्लेनेरिया बन गया। प्लेनेरिया इस केस में दिखा रहा है ट्रू रीजेनरेशन। क्या दिखा रहा है बेटा? True Regeneration. regeneration. ट्रू रीजेनरेशन। तो प्लेनेरिया या हाइड्रा जैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अभी बहुत हायर लेवल पर ऑर्गेनाइज्ड नहीं हुए, प्लेनेरिया जो है वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है, वहीं पर हाइड्रा जो है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है। तो यहाँ ये ऑर्गेनिजम्स बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स नहीं होने की वजह से ट्रू रीजनरेशन दिखा पा रहे हैं, लेकिन फिर उनसे और ऊपर के ऑर्गेनिजम्स में हम चलेंगे तो वो ट्रू रीजनरेशन नहीं दिखा। Are you excuse me getting my ma'am, point? हाँ बेटा बोलो। मैम हाँ बेटा ma'am, बोलो। what is the difference in the regeneration of a lizard and the planaria? एंड प्लेनेरिया देखो, जो लिजर्ड है, लिजर्ड की जो टेल है, that part of the body has the capacity to regenerate, right? That means to say कि जो टेल पार्ट है वो नया उगकर आ जाएगा, लेकिन जो प्लेनेरिया है उसकी पूरी बॉडी में ऐसे सेल्स हैं, उसकी पूरी बॉडी में जो सेल्स हैं, they are not very complex, they are not very specialized, and that is why they are capable of giving rise to any part of the planaria. Are you getting my point? टेल पार्ट जो है वो टेल पार्ट को ग्रो कर रहा है। हाँ बोलो। हाँ Whereas lizard can only regenerate from a specific part. फिर से बोलो बेटा, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है बिल्कुल मुझे, बोलो फिर से बोलो। Ma'am, lizard can only regenerate from a specific part of a body. Yes, obviously. If you are going to crush its mouth, it will die. Have you seen, कभी देखा है लिजर्ड की पूंछ कटे देखा है? Yes, ma'am. यस मैम। लिजर्ड की पूंछ जो है वो रीजनरेट हो जाती है, दैट मीन्स टू से वहां पर जो सेल्स होंगे नेचुरली दे आर केपेबल ऑफ ग्रोइंग दैट टेल पार्ट ओनली। तो टेल से टेल पार्ट निकलेगा, बट टेल से हेड पार्ट नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो टेल कटा है उससे पूरी लिजर्ड बन जाए। तो दिस व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट कॉम्प्लेक्सिटी,
राइट क्योंकि लिजर्ड जो है एक रेप्टाइल है और जो रेप्टाइल्स हैं दे आर हाईली कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो उनके सभी सेल्स स्पेशलाइज्ड है। तो टेल सेल्स टेल को जन्म तो देंगे लेकिन टेल सेल्स एब्डोमेन और हेड पार्ट को जन्म नहीं देंगे। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। लेकिन इन केस ऑफ प्लानेरिया, इन केस ऑफ हाइड्रा, बिकॉज दे आर शोइंग अ लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनके सेल्स इतनी हाईली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो इसीलिए वो वापस अलग अलग पार्ट अपने बॉडी के बना सकते। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम प्लेनेरिया का साइज क्या होता होगा? प्लानेरिया एक बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है। इट इज एग्जैक्टली देखो साइज मैं नहीं बता सकती। मैम दिखता है मैम नेकेड आईज से? नेकेड आइज से तो प्लानेरिया नहीं देख सकते हैं, शायद नहीं देख पाएंगे नेकेड आइज से, माइक्रोस्कोपी चाहिए बेटा इन्हें। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम अगर अमीबा जैसे मैम अडेप्टेशन होगा ज्यादा ही तो मैम क्या होगा? क्या बेटा फिर से बोल। अगर मैम अमीबा जैसे मैम ऑर्गेनिज्म ज्यादा ही डेवलप्ड रहेंगे तो क्या होगा? अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? हम ज्यादा डेवलप्ड हो जाएंगे तो? अगर अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स ज्यादा डेवलप्ड हो जाएंगे तो पहली बात तो ये है कि मान लो मतलब आपका ये है कि ज्यादा डेवलप्ड हो गए, तो ज्यादा डेवलप से आपका मतलब है कि उनका सेल समझदार हो गया है, Yes, ये मतलब है? यस मैम। अच्छा, तो मतलब अमीबा में सोचने समझने की ताकत है, तो अब अमीबा में सोचने समझने की ताकत है तो इसका मतलब ये है कि वो सोचेंगे समझेंगे हमारी और आपकी तरह। और सोचने समझने वाला क्या करता है? वो करता है जो ज्यादा अच्छा हो उसके लिए, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट से खुद को आसानी से बचाएंगे, और ऐसा करने पर वो ग्रो करेंगे, उनको पता लगेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कुछ होता है, तो वो नए नए तरीके से ग्रो करेंगे डेफिनेटली, है ना। तो हाउएवर जैसे आप कह रहे हो ना ये कि कोई अमीबा ज्यादा वेल डेवलप्ड हो जाए, तो अमीबा क्यों, और ऑर्गेनिजम्स भी वेल डेवलप्ड हो रहे हैं, जहां आप और हम वेल डेवलप्ड हो रहे हैं और ऑर्गेनिजम्स भी ट्राई करते हैं वेल डेवलप्ड होने का। हाउएवर उनका हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये तो बहुत बहुत ही ज्यादा। मैम लेकिन एक टाइम पर अमीबा भी तो मतलब हमारी तरह नहीं, Yes, उनके ma'am. भी जैसे होशियार हो सकते हैं मैम, क्योंकि हम भी तो तो अपने एक पूर्वज टाइम पे थे मेरे लाल, एक टाइम पर थे, और वो टाइम बहुत पुराना है, तो अगर उन्हें भी हमारे जितना वेल डेवलप्ड होना है तो उन्हें भी इतने ही टाइम लगेगा। इवोल्यूशन टेक्स टाइम। इवोल्यूशन का क्या मतलब है? जो चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को एक्यूमुलेट करा, तो जब उन चेंजेस को एक्यूमुलेट करा तो लाखों साल तक वो जो एक्यूमुलेटेड चेंजेस है उनका रिजल्ट है आप और हम। ऐसा नहीं कि फटाक से हम पैदा हो गए थे, है ना। हमें यहाँ तक पहुंचने में उस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से जितने साल लगे उतने साल अमीबा को भी लगेंगे फिर, है ना। मैम पर जैसे मैम थोड़े बहुत वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है मैम, जैसे एनिमल्स, हाँ बोलो। वो डेवलप्ड हुए तो? देख बेटा, तू जो चीज पूछ रहा है ना, तू थोड़ा सा इवोल्यूशन पूछ रहा है। देख ऐसे मैं बताऊं, अब ये देख, ये एक ऑर्गेनिज्म है जिससे सबने अपनी यात्रा शुरू करी, इसको नाम दे दिया मैंने ए, ठीक है। अब ए जो है इससे दो तरीके के ऑर्गेनिज्म बने, मान लीजिए बी और सी, ठीक है। अब बी से बने आगे B1, B2, B3, सी से बने आगे C1, C2, C3, सही है। यस मैम। अब आप अगर ये कह रहे हो कि यहाँ पर हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं B1 से, तो B1 से आगे बन गए और B1A, B1A, B1B ऐसे करके बन गए। तो आप अगर यहाँ मान रहे हो ये B1A है, ये हम है ना। अगर ये B1A है जो हम है, और ये जो अमीबा है ये यहाँ पर है ना, तो ये जो पूरा रास्ता है हमारा, इसी रास्ते पर जब ये चलकर आएगा तब ये हमारे जितना हाईली डेवलप्ड होगा। लेकिन अगर ये इस रास्ते की जगह इस रास्ते पर आ जाएगा तो ये कुछ और बन जाएगा। सही है, सही है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि हम थोड़ी एक अकेले इस प्लैनेट पर 1.7 मिलियन स्पीसीज हैं जिनको हम देखते हैं, जानते हैं, उससे भी ज्यादा है। तो वो 1.7 मिलियन स्पीसीज अलग अलग रास्ते से होके गुजरी हैं। तो उनमें से ये अमीबा जब बिल्कुल सेम रास्ता, हमारे जैसा इवोल्यूशन का रास्ता, हमारे जैसे चेंजेस को एक्यूमुलेट करेगा, तब जाके ये हमारे जितना वेल डेवलप्ड होगा, वरना ये कुछ और ऑर्गेनिज्म भी बन सकता है। गॉट माय पॉइंट? हाँ मैम तो ये उसी मैम तो दूसरी रास्ते से हमारे B1A पे भी तो आ सकता है। हाँ बेटा, देखो हो तो बहुत कुछ सकता है, ये तो आप मैम तो एज्यूम कर रहे हो कि ऐसे चेंज हो गया। इट्स नॉट दैट,
कि आपने एक बॉल फेंका और ये वहां पहुंच गया, ऐसे नहीं हुआ है, ऐसे बिल्कुल नहीं हुआ है। जितना भी डेवलपमेंट हुआ है या हम जितने डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ तक पहुंचने के लिए इस सिंगल सेल के अंदर या इस सिंगल सेल ने बहुत बड़ी यात्रा करी है। सही है। अमीबा भी ये सिंगल सेल नहीं है, अमीबा भी इससे आगे की स्टेज में एक यूकेरियोटिक सेल है, राइट। तो आप जो कह रहे हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर बदलाव ला सकता है, लेकिन वो हमारे स्टेज तक पहुंचने के लिए उसको बहुत सारी चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एक्यूमुलेट करना। मैम इवोल्यूशन मैम होता कैसे है मैम, क्यों होता है? बेटा हम इवोल्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। और इवोल्यूशन ऐसे होता है, इसका एक बहुत छोटा से बता देती हूँ मैं, बहुत ही छोटा सा। ये आप ऐसे समझ लो, मान लो कि एक खेत है, उस खेत में 100 इंसेक्ट्स 100 इंसेक्ट्स हैं जो इस खेत में मौजूद पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, राइट। तो अभी क्या होता है, ये जो 100 इंसेक्ट्स हैं ये पेड़ों को खाते हैं, पेड़ों को खाते हैं क्योंकि, तो हमने क्या करा, डीडीटी स्प्रे करा। क्या स्प्रे करा? डीडीटी नाम का एक इंसेक्टिसाइड स्प्रे करा। अब क्या है, ये जितने भी मच्छर हैं, सॉरी इंसेक्ट्स हैं, ये डीडीटी से ज्यादातर मर गए। मान लो इनमें से 95 मर गए। कितने मर गए? 95 मर गए। बस मारना बंद कर दे प्लीज। तो 95 मर गए। 95 इसलिए मर गए क्योंकि इनकी जीन्स के पास डीडीटी से लड़ने की कोई चीज नहीं थी, लेकिन उनमें से 5 जो थे वो थोड़े अलग थे, उनके पास ऐसी जीन्स थी जिन्होंने उन्हें बचा लिया, तो ये 5 बच गए। 5। हेलो, यस मैम, यस मैम। अब ये 95 तो मर गए। अब हमें पता लगा कि ये डीडीटी से मर गए हैं और इंसेक्ट्स मरते हैं। अब हमने क्या करा, देखा कि 95 मर गए, बच्चे तो पैदा करेंगे नहीं 95, ये जो 5 है यही आगे बच्चे पैदा करेंगे। तो धीरे धीरे खेत में सारे के सारे इंसेक्ट्स डीडीटी से रेजिस्टेंट हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे। चेंज आ गया कि नहीं जेनेटिक पैटर्न में? बस इस तरह से इवोल्यूशन होता है। इस तरह से इवोल्यूशन होता है, और भी कई सारे तरीके हैं। ये एक मतलब मैंने आपको बताया है कि इस तरह से चेंजेस आ सकते हैं, या एक पर्टिकुलर तरह की जीन को प्रेफरेंस। मैम जैसे कुछ साइंटिस्ट मैम डायनासोर के डीएनए को रीजनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? मैम ऐसे मैम बिल्कुल ऑर्गेनिज्म कैसे चेंज हो गया मैम? कुछ बिल्कुल क्लियर नहीं है स्कंद, आपकी आवाज चैट में लिख कर दो बेटा। मैम तो ऐसे मैम कोई भी ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन से मैम चेंज ही हो गया पूरा मैम? बिल्कुल हो ही जाता है, मैम। तो इवोल्यूशन मतलब में चेंज हो जाता है। बेटा हम लोग इवोल्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। जब इवोल्यूशन पढ़ाऊंगी तो आपको इवोल्यूशन पूरा बताऊंगी, डोंट वरी। बट अभी फोकस कीजिए, हम जो पढ़ रहे हैं उस पे करेंगे, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमने कंप्लीट कर लिया बिल्कुल पूरी तरह से, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद मैं आपको आज थोड़ा सा बताऊंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। रेडी हैं आप लोग? यस ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन बताएगा मुझे डिफरेंस? बताइए मैम। सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं मैम, असेक्सुअल में एक sex is included. सेक्सुअल में 1 पेरेंट। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम देखते हैं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल में सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है पेरेंट्स के नंबर। एसेक्सुअल में कोई सेक्स इन्वॉल्व नहीं होता, सेक्सुअल में होता है। लेट्स कम ऑन टू दिस, राइट। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से जो बाइपेरेंटल है वो है सेक्सुअल, 2 ऑर्गेनिजम्स, और यूनिपेरेंटल है एसेक्सुअल। जब यूनिपेरेंटल है और एक ही पेरेंट है तो गैमीट फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, तो कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती। पर यहाँ गैमीट फॉर्मेशन होती है। गैमीट्स क्या होते हैं? अर्नब सिंह बता सकते हैं गैमीट क्या होते हैं बेटा? हाँ अर्नब, व्हाट आर गैमीट्स? कोई और बता सकता है गैमीट के बारे में? मैम रिप्रोडक्टिव सेल्स। हाँ ठीक है। श्रेया आप भी कुछ कह रहे हो बेटा? Ma'am, they are special cells meant for reproduction. That's it. These are the special cells जिन्हें सेक्स सेल्स भी कह सकते हैं, हाँ अर्नब, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स को
हम गैमीट्स कहते हैं, राइट। अब ये जो गैमीट है ये कौन बनाता है? मेल मेल गैमीट बनाता है, फीमेल फीमेल गैमीट बनाता है। अब गैमीट क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं तो इनका फ्यूजन भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल माइटोटिक डिवीजन होते हैं। Parvjen, what is the difference between mitosis and meiosis? हाँ Parvjen, differentiate between mitosis and meiosis. Yes ma'am. बोलो बेटा। हाँ बोलो। कोशा शर्मा। Mitosis में मैम, कोशा शर्मा, differentiate between meiosis and mitosis. मैम माइटोसिस में मैम सेल न्यूक्लियाई मैम हाँ पर बोलो, बोलो बेटा। Skand Gupta, would you like to answer this? Yes, may ma'am. I? Ma'am, may I? मैम मैं आए। हाँ Skand Gupta बोलिए। Yes, ma'am. मैम माइटोटिक मैम एसेक्सुअल सेल्स में होता है मैम, जो मतलब थोड़ा क्लियर नहीं आ रही बच्चे, आवाज क्लियर नहीं आ रही तुम लोगों की आज। मैम मैम माइटोटिक डिवीजन उनमें होता है सेल्स में जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं। अच्छा नहीं तो पर आप बेसिक बात बताओ ना कि माइटोसिस किस तरह का सेल डिवीजन है, फिर क्या किस चीज में मदद करता है? माइटोसिस कहाँ होता है हमारी बॉडी में बताओ। मैम मियोसिस में तो मैम मैम, डिवीजन ऑफ मियोसिस में- सेल्स होते हैं। माइटोसिस में क्या होता है पहले ये बताइए। माइटोसिस कौन से सेल्स में होगा हमारे? मैम जो मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स बॉडी सेल्स में, मतलब हमारे जो सेक्स सेल्स नहीं है उसके अलावा सभी बॉडी सेल्स में हमारे माइटोसिस होता है। और माइटोसिस हमारे सेल की ग्रोथ में, हमारी बॉडी की ग्रोथ में, कोई डैमेज होने पे, वियर एंड टियर होने में, नया प्रोडक्शन होने में मदद करता है। तो बॉडी सेल्स में होने वाला माइटोसिस, जब मैं साइज में बड़ी हो रही हूँ तो माइटोसिस हो रहा है। मेरे चोट लग गई और वहां पर, जैसे मेरे यहाँ चोट लगी हुई है, पता नहीं निशान दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो यहाँ मेरे एक चोट लगी थी, वो चोट मेरी अब हील हो गई है। तो हीलिंग किसने करी? माइटोसिस डिवीजन के द्वारा यहाँ के सेल्स ने, जिससे कि दोबारा मेरी नई स्किन आ गई, राइट। मेरे बाल बढ़ रहे हैं सेल्स की मदद से, डिवीजन की मदद से। तो ये सारा कुछ माइटोटिक डिवीजन है। जबकि मियोसिस होता है केवल हमारे सेक्स सेल्स बनाने में। जब हमारे शरीर में गैमीट बनते हैं तो उन गैमीट्स को बनाने के लिए होता है मियोसिस, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है सौमिल जैन? मैम हाफ हो जाता नंबर है। क्या हो जाता है बेटा? मैम 2 से हाफ हो जाता है। हाफ हो जाता है। मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ क्यों हो जाता है अमोघ? हाँ अमोघ, why chromosome number gets half during meiosis? अमोघ हाँ बच्चे। Can I tell? I just actually wanted to give an opportunity to each and every one of you. Amol, why you are not able to? Are you not able to answer this? Kush, would you like to answer this? Kush Saxena. Okay, पर्व आप बताइए। हाँ पर। Ma'am, because cells are combined. Why they combine? गैमीट है ना। हम अगर देखें मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा, तो मेल गैमीट जब फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा तो क्या होगा? अगर उनका क्रोमोसोम नंबर आधा ना करे तो यहाँ क्रोमोसोम नंबर जो ओरिजिनल है वो नहीं रहेगा और डबल हो जाएगा। तो ये डबल ना हो जाए क्रोमोसोम का नंबर और ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर रहे, इसके लिए पहले मेल और फीमेल गैमीट का क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, ठीक है। यस बेटा मैम। बोलो, कुछ कहना चाहते हो? बोलो। नो मैम। अच्छा ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखी हैं। एक बार आप लोग ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंसेस और देखो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होगा बच्चा वो आइडेंटिकल होता है, क्लोन होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादातर वेरिएशंस होती है। आइडेंटिकल होता है, क्लोन जैसा होता है, पर जैसे मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली क्लोन हो ऐसा जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि रैंडम म्यूटेशंस एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में भी होती है। व्हाट आर म्यूटेशंस? सौमिल जैन, व्हाट आर म्यूटेशंस? मैम थोड़ा सा जूम कर दीजिए। मैम अडैप्टिंग टू सम
हाँ बेटा बताओ क्या कह रहे हो? मैम थोड़ा जूम कर दीजिए। मैं बेटा देखती हूँ, उसमें यहाँ कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा एक्चुअली जूम करने का। मैम may I tell what is mutation? I'm sorry, I'm unable to zoom in. Sorry. हाँ बेटा बोलो। मैम may Ma'am, I? mutation हाँ is बोलो। when organism adapt. Yes. बोलो बेटा। Ma'am, when organisms adapt. Can you be a bit louder, Soumil? I'm unable to hear you. हाँ, when organisms. Ma'am, when organisms adapt. I'm not able to hear. Sorry. Kindly write in the chat box then. So mutations. Let's say that what are mutations? Mutations are. हाँ बोलो, आप बोलना चाहते हो, बोलो बेटा। मैम म्यूटेशन इज समथिंग मैम जब डीएनए में कुछ रॉन्ग होता है मैम, कुछ मतलब तो म्यूटेशंस आने लगती हैं चाइल्ड में। मैम म्यूटेशंस मैम जब मैम डीएनए सही से फंक्शन नहीं करता तो मैम मतलब सीक्वेंस सीरीज की सही नहीं होती तो मैम म्यूटेशंस आती है चाइल्ड में। नहीं, म्यूटेशन का मतलब है सडन इनहेरिटेबल चेंज। वो जरूरी अच्छी है या बुरी है वो मुझे नहीं पता, ठीक है, बट एक्चुअली में क्या होता है, म्यूटेशन का क्या मतलब है, सडन इनहेरिटेबल चेंज, यानी कोई सा भी चेंज, कोई सा भी अच्छा बुरा, कोई सा भी ऐसा चेंज जो जेनेटिक स्तर पर हुआ है, जेनेटिक स्तर पर हुआ है मतलब अगली जनरेशन में जाएगा, है ना। तो मान लो कि मेरा आई का कलर ब्लैक है, तो कोई म्यूटेशन हुआ जिससे मेरा आई का कलर ब्लैक की जगह ब्राउन हो गया, तो ये जो जेनेटिक लेवल पे म्यूटेशन है ये आगे मेरी जनरेशन में, मेरे बच्चों में जाएगा, राइट, तभी ये क्या कहलाएगा, म्यूटेशन, ठीक है बात। सो सडन इनहेरिटेबल चेंजेस आर कॉल्ड म्यूटेशन। रैंडम म्यूटेशन मतलब कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, किसी भी दिशा में कहीं से भी म्यूटेशंस होती है। हाउएवर म्यूटेशंस यहाँ पर भी होती हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वैसे भी वेरिएशन ज्यादा होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ज्यादा बड़ा हाथ है किसमें, इवोल्यूशन में। जो इवोल्यूशन देखते हैं हम स्पीसीज में, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे तरीके हैं, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरिलेशन जो हमने पढ़े थे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई तरीकों से हो सकता है, जैसे पौधों में पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन और ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन। Are we done with the difference between the asexual and the sexual reproduction? Yes, class. Any Yes, queries ma'am. from this? Any queries No, from ma'am. this? Achha. Now I'm introducing you to certain terms such as dioecious, monoecious. देखो, हम human beings जो हैं, अच्छा, let me ask you a question. Abhinav Farashar, are you able to hear me? Yes, ma'am. अभिनव एक बात बताओ कि हम ह्यूमन बीइंग्स देख के बता सकते हैं ना ये मेल है ये फीमेल है, हाँ या ना? Yes, ma'am. है ना। अच्छा, जब कोई बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है वो, तो क्या हम तब बता पाते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है? हाँ अभिनव, अभिनव Yes, ma'am. बता पाते हैं? जब बिल्कुल छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा किसी ने गोदी में लिया तो हमको देख के पता लग जाता है ये मेल है कि फीमेल है? नो मैम। नो मैम। नहीं पता लगता। तो जब हम छोटे से थे तब हमारे बीच में ऐसे डिफरेंशिएट कोई देख के, चेहरा देख के नहीं बता सकता था, लेकिन अब आप लोग इतने बड़े हो गए हो कि अब आपके बीच में कोई डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं कि भाई तुम मेल और तुम फीमेल, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो होते हैं डायोइशियस। डाई मतलब दो, मेल और फीमेल जो है हमारे वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिफरेंट बॉडी में होते हैं। डायोइशियस उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनमें मेल अलग होते हैं और फीमेल्स अलग। अब क्योंकि मेल्स अलग हैं और फीमेल्स अलग हैं, तो एक और फीचर की बात करते हैं, वो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इसको मैं अलग अलग पार्ट्स में तोड़ के बताती हूँ। सेक्सुअल मतलब जब हम सेक्स को डिफरेंशिएट कर पाए, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअली डिफरेंशिएट कर पाए उसकी मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेसिस पर, तब हम इसे कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। फिर से सुन लो, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को उसकी मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेसिस पर दो सेक्सेस में डिवाइड कर पाए और बता पाए कि ये मेल है और ये फीमेल है। जैसे अगर आप बात करेंगे कि लड़के कैसे दिखते हैं, लड़के लंबे होते हैं ज्यादा, लड़कों में कंधे ज्यादा चौड़े होते हैं, है ना। लड़कों की आवाज कैसी होती है, लो पिच वॉइस होती है ना, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ टाइप की आवाज है, हाँ या ना?
है ना? Yes, ऐसी sir. लड़कियां जो होती हैं उनकी आवाज अलग होती है, हाई पिच वॉइस होती है, डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स होता है उनके में, राइट? तो देयर आर सर्टेन फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर्स, जिनको देख के ही हम सेक्सेस के बीच डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं सेक्सुअल डायमेंशन। क्लियर है बच्चों? पहले ये बताओ, सारे के सारे बताओ मुझे एक एक, ऑल ऑफ यू, इफ यू आर Yes, क्लियर। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अमोघ, कुश, श्रेया, Yes, ma'am. यश, Yes, ma'am. ओके। तो अभी जैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ और फीचर्स की, जैसे मेल्स में एडम्स एप्पल पाया जाता है। मेल्स जो होते हैं ना, जो अभी थोड़े से छोटे हैं आप लोग, मेल्स में यहाँ पर एक एडम्स एप्पल करके एक स्ट्रक्चर होता है, ये ज्यादा डेवलप्ड होता है, बाहर निकला हुआ होता है। तो जैसे आप लड़कों की टीनेज स्टार्ट हो जाएगी ना, प्यूबर्टी आएगी, तो आप में भी दाढ़ी मूंछ आने शुरू हो जाएंगे, एडम्स एप्पल डेवलप हो जाएगा। जबकि फीमेल्स में मैमरी ग्लैंड्स डेवलप करेंगी, उनकी जो आवाज है वो थोड़ी बदल जाएगी, हाई पिच वॉइस हो जाएगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करने में जो काम आते हैं। सही बात? समझ आई ये बात? Yes, ma'am. नाउ Yes, ma'am. नाउ एक चीज बहुत सिंपल सी है, देखो हम पहले भी आपको पढ़ाते आए ये बात कि कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा होते ही रिप्रोडक्शन शुरू नहीं करता। जैसे ये सेल है, ये पैदा हुआ, पैदा होके ग्रो किया, और ग्रो करने के बाद में, अब ये ग्रोथ करने के बाद में उस स्टेज पे आया जब ये रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो अब ये डिवाइड हो गया भाई 2 सेल्स में। सही है? ऐसे होता है। तो ऐसे ही ह्यूमन बीइंग का बच्चा जब पैदा होता है तब उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है या नहीं? होता होगा वेल डेवलप कि नहीं? No, नहीं ma'am. होता है, No, नहीं ma'am. होता है। तो उसका सिस्टम वेल डेवलप्ड होने में उसे टाइम लगता है। तो वो पीरियड ऑफ टाइम जबकि हम सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स जब सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करते हैं तो उसे कहते हैं हम प्यूबर्टी। क्या कहते हैं बेटा? प्यूबर्टी। तो अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड प्यूबर्टी। कैन यू काइंडली रिपीट, ऑल ऑफ यू रिपीट दैट, अटेनमेंट ऑफ Attainment of sexual maturity Sexual maturity is called puberty. is called It's called puberty. puberty. ये प्यूबर्टी जो है लड़कियों में जल्दी और लड़कों में थोड़ा लेट अटेन होती है, राइट? लड़कियां 10 से 12 साल में प्यूबर्टी अटेन कर लेती हैं ज्यादातर, जबकि लड़के थोड़ा लेट प्यूबर्टी अटेन करते हैं, राइट? और ये और भी चीजों पे डिपेंड करती है, जैसे कि हम ट्रॉपिकल कंट्रीज के रहने वाले लोग हैं, तो हमारे यहाँ के बच्चे 10 से 12 या 12 से 14 साल में प्यूबर्टी अटेन करते हैं। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज में है, ठंडे देशों में, वो प्यूबर्टी लेट अटेन करते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर का और एरिया का और बहुत सारे फैक्टर्स का असर पड़ता है हमारे प्यूबर्टी अटेन करने पर। मैम टेम्परेचर और एरिया से मैम कैसे रिलेशन हो गया? रिलेशन होता है बेटा, एक्चुअली सिर्फ टेम्परेचर और एरिया का नहीं, जेनेटिक मेकअप का भी असर होता है। तो जो यूरोपियन है, वहां की कोल्ड क्लाइमेट की वजह से उनकी जो टेस्टीज या ओवरीज है वो बहुत जल्दी एक्टिवेट नहीं हो पाती, जबकि ट्रॉपिकल कंट्रीज में टेम्परेचर के हाई होने की वजह से ये हाई टेम्परेचर जो है उनकी टेस्टीज और ओवरीज को जल्दी एक्टिवेट करने में सहायक होता है। पर ये सिर्फ अकेला रीजन नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे रीजन, जैसे आप कई बार देखोगे, मैं जैसे अगर आपको एग्जाम्पल बताऊं, अभी आप लोग छोटे हो, जैसे 10th 11th क्लास के बच्चे होते हैं, तो मैं पढ़ाती हूँ उनको जब, तो उनमें से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो दिखने में बड़े छोटे और बहुत यंग लगते हैं, जबकि कुछ लड़के बहुत ही बड़े और मतलब बिल्कुल एडल्ट लगते हैं। आपने भी देखे होंगे, देखे हैं? Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. ऐसा तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि सारे एक ही जैसे दिख रहे हैं। कुछ लड़के बड़े छोटे से लगेंगे और कुछ लड़के बड़े बहुत ही ज्यादा मतलब बड़े लगेंगे। तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उनकी फैमिली का जो जीनोटाइप रहा है, उनका जैसा खान पान है, राइट? और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको अभी तो फिलहाल मैं डिस्कस नहीं करूंगी आप लोगों के साथ, जैसे जैसे समझ पैदा होगी वैसे वैसे डिस्कस करूंगी। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स जो कि हमारी प्यूबर्टी अटेन करने में मदद करते हैं। ठीक है बेटा? ऑलराइट। तो प्यूबर्टी Yes, अटेन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जिस चीज का होता है वो होता है रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स। अभी हमने एक तो टर्म पढ़ा था बच्चे अभी, गैमीट। गैमीट तो सबको क्लियर है मेरे ख्याल से?
Yes, ma'am. है ना। अब दूसरा Yes, टर्म ma'am. जो हम पढ़ेंगे वो है सेक्स हार्मोन्स। वो हार्मोन्स जो हमें सेक्सुअल मैच्योरिटी में मदद करते हैं, जैसे मेल्स में है ये टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में है ये एस्ट्रोजन, राइट। तो ये दोनों हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं रेस्पेक्टिव मेल और फीमेल की बॉडी में, तब मेल और फीमेल की बॉडी में शारीरिक बदलाव आते हैं, उनमें मानसिक बदलाव भी आते हैं। तो ये जो शारीरिक और मानसिक बदलाव है, इनके लिए ये हार्मोन्स का रिलीज होना भी जिम्मेदार है। तो इस तरह से आज का चैप्टर हमने यहाँ पर खत्म कर दिया है, और बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे बच्चों, ओके।